Good morning, students. Welcome to RAKVB e-learning. First, let me introduce myself. I am Dwani Monpara, your new SS teacher. After this long vacation, RAKVB family heartily welcomes all the students to e-learning. We hope you all are fit and fine. Let's begin with our first chapter: what, where, how, and when. सो वॉट यानी कि क्या, वेयर कहाँ से, हाउ कैसे, व्हेन कब। तो इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। लेकिन क्या हम ढूंढ रहे हैं यहाँ बैठे बैठे? हम हमारी एंशियंट हिस्ट्री को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वॉट आर वी ट्राइंग टू फाइंड? अ एंशियंट हिस्ट्री। सो इन दिस चैप्टर लेट्स रिकॉल दैट व्हाट ऑल थिंग्स वी विल लर्न। फर्स्ट वी विल लर्न इज द नेम ऑफ द लैंड, कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इंडिया नाम कैसे मिला। सेकेंड थिंग इन दिस चैप्टर वी विल लर्न इज how can we know about past, what can we know about past, from where we can know about past, and where people used to live. Second thing we will learn is significance of dates. Obviously dates plays an important role. Why? Because incidents happen in a chronological order. Chronological order यानी कि एक sequence में होती है चीज़ें। तो to remember that sequence and to remember the history, dates plays an important role. Next thing is described in the textbook is the name of our textbook, Our Past History. What does that mean? Does our history is one? Do our history is two? No, our history is full of incidents. Then there comes a question, how to find the past? So, to understand history, we take a help of dates. Now, how are dates counted? See, today is 15th June 2020, right? There was a period when there was a born of Jesus Christ. So, the period before the birth of Jesus Christ is known as before Christ or before Common Era. After the birth of Jesus Christ, the period is known as Common Era. What can we know about past? Again, that's a question. Yes? So over here we will learn about people and children. Let's first see what does we come to know about people. First thing we come to know is what were they wear. That means the kind of clothes they wear. आज हम jeans, t-shirts, साड़ी वगैरह पहन रहे हैं। पहले क्या ये सारी चीज़ें थी हमारे पास? Before the invention of machines, there were no stitched clothes. Either you used to wear barks of the trees, leaves, or some jute. Then comes housing. Today we live in a pakka house, bungalow, flats, apartments, right? Were there first in the beginning or in the ancient history, do we find any era of bungalows? Any apartments? No. So we will know about their housings, their lives and occupation. आज हम क्या कर रहे हैं? क्या वो सिमिलर था जो पहले वही ऑक्यूपेशंस थे? नहीं। तो इनके बारे में हमें पता चलेगा। फिर क्या खाते थे? ऑब्वियसली भूखे तो रहते नहीं थे। आज हमें कुकिंग करना आता है, हम मास्टर शेफ देख के हर रोज़ अच्छी अच्छी की चीज़ें मम्मी से बनवाते हैं। तो क्या पहले ऐसी चीज़ें हुआ करती थी? So we will learn about people. Let's see what do we come to know about lives and occupation of the people. First was hunters. Hunters were the people who used to hunt things. यानी वो चीज़ों को ढूंढने जाते थे. Second occupation over here we come to know is herders. Herders मतलब जो एनिमल को रियर करते थे, एनिमल्स को ढूंढ के उनकी डोमेस्टिकेशन करते थे. देन कम्स फार्मर्स. फिर खाने के लिए कोई चीज़ों का प्रोडक्शन होना ज़रूरी था. तो वो प्रोडक्शन कैसे हो सकता था? क्रॉप्स के थ्रू. देन केम द फार्मर्स. देन धीरे धीरे रूलर्स आए, मतलब हर राजा बन रहा था, कोई कोई उसका चीफ कमांडर बन रहा था.
देन केम मर्चेंट्स, साइंटिस्ट। मर्चेंट्स यानी कि जो ट्रेडर्स थे, जो चीज़ों का व्यापार करते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते थे। सो दिस वर द लाइव्स एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। देन अभी तक हमने पीपल के बारे में देखा। अब उसमें जो चिल्ड्रन थे उनका स्पेशल इंटरेस्ट किस में हुआ करता था? दे यूज्ड टू लिसन सॉन्ग, स्टोरीज और प्ले। वेयर डिड पीपल लिव? तो हमारी टेक्स्ट बुक में ऐसा दिखाया गया है कि पीपल यूज्ड टू लिव नियर नर्मदा, सुलेमान एंड किरतार हिल्स, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, Ganga and its tributaries, and yes, we also come to know about their living and habit of life. Let's see what were the people near Narmada used to do and what was their lifestyle. People lived along the bank of river Narmada thousands of years ago. हजारों साल पहले भी नर्मदा की जो रिवर थी उसके नज़दीक काफ़ी सारे पीपल रिसाइड करते थे। तो वहाँ का मेन प्रोफेशन क्या था? तो नर्मदा के पास वाले जो लोग थे देवर स्किल गैदरर्स, यानी कि दे वाज वेरी मच स्किल्ड, दे वर हैविंग सच काइंड ऑफ स्किल्स टू गैदर फूड। आज हम कोई भी फ्रूट क्या खा सकते हैं जंगल में से लेके? नहीं। तो वो लोग क्या खाते थे? जो चीज़ें सिर्फ एडेबल थी। तो उनके पास एक बहुत अच्छा नॉलेज था फ्रूट्स, रूट्स और उनके प्रोडक्ट्स का, कि कौन सी चीज़ें किस चीज़ की खा सकते हैं, किसके लीव्स खा सकते हो, किसके फ्रूट्स खा सकते हो, किसके रूट्स खा सकते हो। यहाँ तक कि उनको बहुत प्लांट लाइफ की बहुत अच्छी नॉलेज थी। प्लांट लाइफ की नॉलेज होना इसलिए उनके लिए इम्पॉर्टेंट था ताकि उनके पास बेक्ड फूड्स थे नहीं, वो जो भी खाते थे रॉ खाते थे, तो उसमें से अगर कोई पॉइजनस चीज़ ना खानी पड़े, इसलिए उनके पास ये नॉलेज बहुत अच्छे से था। दूसरा, वो लोग एनिमल्स को हंट करके खाते थे, यानी कि कोई अगर एनिमल हमें फॉरेस्ट में जाते वक्त दिख जाता था तो वो उनको हंट करते थे, उनका शिकार करते थे और उनको घर लाके खाया जाता था। सुलेमान एंड किरतार हिल्स के लोग, तो वो कहाँ लोकेटेड था? पहले तो हम देखें तो नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड था। कहाँ लोकेटेड था? नॉर्थ वेस्ट। फिर हमें पता चल रहा है धीरे धीरे कि वहाँ पे किस टाइप के क्रॉप्स ग्रो करते थे। तो 8000 ईयर्स पहले की अगर हम बात करें, अराउंड 6000 की बात करें, तो वहाँ वीट और बार्ले ग्रो किया जाता था। क्या ग्रो किया जाता था सुलेमान और किरतार हिल्स में? वीट एंड बार्ले। एग्रीकल्चर उनका एक मेन ऑक्यूपेशन बन गया। अब एग्रीकल्चर करने के लिए आज की डेट में हम ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, राइट? तो पहले क्या ट्रैक्टर्स थे? नहीं। जो ट्रैक्टर्स का वर्क था वो एनिमल्स ने लिया था और एनिमल्स को रियर करना उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया, तो उन्होंने एनिमल डोमेस्टिकेशन किया, यानी कि एनिमल्स को पालने की शुरुआत की। तो कौन से एनिमल्स उनके लिए एग्रीकल्चर के लिए वो लोग यूज़ करते थे? तो कहा गया है शिप, गोट और बाकी कैटल्स। अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ रहा था उनकी सपोज मेरे पास 100 एकर्स की लैंड है, तो क्या 100 एकड़ में जो मैंने क्रॉप्स ग्रो किए वो सारे मैं अपने लिए यूज़ करूँगी? नहीं। तो मैं उनको सेल करने के लिए कहीं जाऊँगी। तो वो पर्पस से एग्रीकल्चर से ट्रेड एंड कॉमर्स का इन्वेंशन हुआ। ट्रेड एंड कॉमर्स से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे व्यापार करने चले गए। एंड ओवर देयर व्हाट डिड दे फाइंड? They find that due to trade and commerce, their village got developed. Village started developing. So agriculture played an important role for development of villages. Garo Hills and in Vindhya range. So again, over here also agriculture developed. Through agriculture, trade developed, and due to trade, villages got developed. One more thing you have to remember over here is the type of crop they used to grow. So the first crop they started growing in Garo Hills was rice. याद रहेगा बच्चे लोग? I hope. Then comes Indus tributaries. इंडस ट्रिब्यूटरी, ऐसा कहा माना गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो शुरुआत हुई थी वो इंडस रिवर्स के थ्रू हुई थी। तो अगर हम बात करें तो उस वक्त
वहाँ पे 4700 ईयर्स अगो की बात है। तो सिटीज स्टार्टेड फ्लरिशिंग, मतलब सिटीज़ के जो रिवर के आसपास जो सिटीज़ थी, इंडस रिवर के आसपास जो सिटीज़ थी, दे स्टार्टेड डेवलपिंग। हाउ दे स्टार्टेड डेवलपिंग? ड्यू टू एग्रीकल्चर एंड ड्यू टू द वाटर दैट वाज प्रोवाइडेड फ्रॉम इंडस रिवर। एंड ऐसा भी माना गया है कि 2500 ईयर्स से पहले गंगा और सोन रिवर्स के नज़दीक जो सिटीज़ थी वो भी डेवलप हो गई। गंगा के पास एक पावरफुल किंगडम बना जिसको हम कहते हैं मगध। नाउ व्हाई डिड किंगडम स्टार्टेड डेवलपिंग? ड्यू टू ट्रेड, urbanization, migration and traveling migration played an important role। लोग एक दूसरे की जगह जाके ट्रेड करने जाते थे। जैसे जैसे वो ट्रेड करने जाते थे, जो ट्रेडिंग सेंटर था वो धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा था। वो डेवलपमेंट की वजह से उसके आसपास के विलेज भी डेवलप हो रहे थे। तो सो दे टुक प्लेस ऑफ अर्बनाइजेशन। व्हाट काइंड ऑफ प्लेसेस दे यूज्ड टू ट्रैवल? तो फ्रॉम वन सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में वो जाते थे। तो क्यों जाते थे? पहला था तो सर्च ऑफ लाइवलीहुड यानी कि अपनी बेरोजगारी लेने के लिए, कुछ अर्न करने के लिए वो लोग जाते थे। दूसरा, नेचुरल डिजास्टर्स से बचने के लिए, जैसे कि फ्लड है, ड्रॉट्स है। देयर वर प्लेसेस की ड्यू टू लैक ऑफ रेन देयर वाज द सिचुएशन ऑफ ड्रॉट। So obviously if there is drought there would be no productivity, so they need to leave that place and go in a search of new place. Then came exchange of goods. Yes, because they started producing, there came a need of exchange, because the things which I was having or the things which I am having, it's not necessary कि वही मेरे लिए सिर्फ काफ़ी हो, मुझे और चीज़ों की भी ज़रूरत थी। तो there was an एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जिसकी वजह से क्या आया? ट्रेड एंड कॉमर्स का। दूसरा था एडवेंचर। लोग एडवेंचर करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आज हम जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह घूमने, एडवेंचर्स के लिए, कोई रिलीजियस वर्क्स के लिए, है ना। इससे क्या हुआ? ट्रैवलिंग से कौन से इम्पैक्ट्स दिख रही थी? तो एनरिच्ड कल्चरल ट्रेडिशन, मतलब हमें एक दूसरे के कल्चर के बारे में पता चल रहा था, हम एक दूसरे के कल्चर को फॉलो करके कुछ अच्छा करने की सोच रहे थे। देन केम शेड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड कुकिंग फूड। क्या हुआ? स्टोन एज के बाद उनको पता चला कि कैसे वो लोग फूड कुक कर सकते हैं, बिकॉज फायर, आपको पता है फायर का इन्वेंशन कैसे हुआ था? येस, आफ्टर द स्टोन एज, मतलब दो पत्थरों को घिसने के बाद जो उसमें से फ्रिक्शन की वजह से जो फायर होता था, उनसे उनको पता चला कि ये फायर में हम फूड को कुक कर सकते हैं। फिर उन्होंने स्टोन कार्व करना स्टार्ट किया, मतलब दे स्टार्टेड मेकिंग सम आइडियल्स, राइट? दे स्टार्टेड कंपोजिंग म्यूजिक्स। नेक्स्ट वी कम टू नो इज व्हाई एंड हाउ डिड द नेम the name the subcontinent got as land or India. Now India is known as India and Bharat. So let's first see कि इंडिया क्यों कहा जाता है। जो ट्रैवलर्स थे जो ईरान और ग्रीक से आए थे, वो इंडस रिवर के जो ईस्टर्न पार्ट था, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडस रिवर्स को वो लोग इंडोन और हिंडोस कहते थे। क्या कहते थे? इंडोस और हिंदोस, जिसकी वजह से इंडिया को नाम मिला इंडिया और हिंदुस्तान। फिर बहुत वर्ष उसे भारत भी कहा जाता है। पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि अराउंड 1500 BC इन वैदिक एज ऋग्वेद में एक भरत नाम के राजा का उल्लेख किया गया था, तो उनकी वजह से ये नाम पड़ा भारत। हाउ डू वी कम टू नो अबाउट पास्ट? अच्छा, हमें पता तो है कि ये सब चीज़ें हुई थी। अब तक तो हमने देखा कि पास्ट में क्या क्या हुआ था, लेकिन हमें ये चीज़ों के बारे में पता कैसे चलता है? तो ये चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है थ्रू सोर्सेज। तो सोर्सेज में 3 टाइप के सोर्स है। फर्स्ट इज मैन्युस्क्रिप्ट्स,
second is inscriptions, and third is tools and ornaments. Let's see manuscripts क्या होता है. Manuscripts are handwritten. Handwritten यानी कि उस पर वो सारी चीज़ें लिखी हुई होती है. किससे? हैंड से. दूसरी चीज़ किस पे लिखी जाती थी? तो ट्रीज के जो बार्क होते थे या पाम लीव्स थी उनके ऊपर लिखा जाता था. अब इसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स में एक प्रॉब्लम आई कि अगर वो काफ़ी टाइम तक हम रखते हैं तो उसको इंसेक्ट्स डिस्ट्रॉय कर रहे थे. यहाँ हालांकि सारे इंस्क्रिप्शंस हमारे पास, सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स तो हमारे पास सही सलामत नहीं है, लेकिन कुछ है. तो अगर वो है तो कहाँ रखे गए हैं? दे वर स्टोर्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज. The next question is कि which language was used? So तमिल, संस्कृत एंड प्राकृत. ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे जो एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी. तो कहा गया है तमिल, संस्कृत एंड प्राकृत. याद रहेगा बच्चे लोग? यस, वेरी गुड. और दूसरा क्वेश्चन था मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या क्या लिखा जाता है. तो द सब्जेक्ट्स दैट वर इंक्लूडेड इन राइटिंग्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट वर रिलीजन, बिलीफ यानी कि हमारी रिलीजियस टॉक्स लिखी जाती थी, लाइव्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस, द मेडिसिन्स औषधियों का जो ज्ञान था वो हमें कहाँ से मिला? ऑब्वियसली हमारे एंसेस्टर्स से. देख रहा, घर पे अगर दादाजी है, अगर उनकी तबीयत खराब हो रही तो वो डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, उनके पास मेडिसिन का बहुत अच्छा नॉलेज था, तो उनके बारे में भी हमें पता चलता है. साइंस के बारे में पता चलता है, एपिक्स, पोएम्स और प्लेस के बारे में पता चलता है. महाभारत है, रामायण, ये सब हुआ कैसे पता चला? थ्रू एपिक्स. पोम्स, जो लिटरेचर, जो राइटिंग शेक्सपियर्स जैसे लोगों ने लिखी थी, हमें कैसे पता चलता है? थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट्स. नेक्स्ट कम्स इंस्क्रिप्शंस. तो इंस्क्रिप्शंस क्या थे, किस पे लिखे जाते थे? तो दे वर रिटन ऑन हार्ड सरफेस. हार्ड सरफेस यानी कि स्टोन और मेटल प्लेट वगैरह पे लिखा जाता था. तो उस पे लिखते थे किंग्स और क्वींस की विक्ट्री और उनकी लाइफ के बारे में. दे वर स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स ऑफ किंग एंड क्वीन लाइफ, the victories of the king, rules and orders of the state. One inscription that is given in our textbook is inscription of Khandar, that is presently located in Afghanistan. So over there the lifestyle of Ashoka is written. The orders given by Ashoka, they were two scripts, Greek and Aramaic. Next comes objects and stools. ऑब्जेक्ट एंड स्टूल्स की अगर हम बात करें तो देखा जाए तो कौन से ऑब्जेक्ट्स और टूल्स के थ्रू हमें पता चलता है. पहली चीज़ हम ये देखेंगे यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट्स और टूल्स को स्टडी करने की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजी. क्या कहा गया है उसे? आर्कियोलॉजी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिल्डिंग्स. तो बिल्डिंग से हमें पता चलता था कि वो लोग कैसे टाइप के घरों में रहते थे. आज की जो आर्किटेक्चरिंग डिज़ाइंस है वो क्या हमें यूं ही मिल गई? नहीं, मुगलों से, उससे पहले एंशिएंट वालों से, हमें तब से हमें हमारे डोम्स वगैरह बनाने की जो आर्ट थी वो पता चलती है. बोन्स फिश के हैं, डॉग के हैं, किस चीज़ के हैं, तो इससे पता चलता है कि उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या थी, वो क्या क्या चीज़ें खाते थे और कौन सी चीज़ें एनिमल्स को यूज़ करते थे. पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो उसे पता चलता है कि वो नेचुरल कलर था या आर्टिफिशियल कलर था. दूसरा स्कल्पचर से पता चलता है कि किस टाइप की लाइफस्टाइल वो जीते थे, क्योंकि स्कल्पचर्स किसके बनाए जाते थे? जो ग्रेट किंग्स और आइडियल पर्सन जो होते थे उनकी कोई स्कल्पचर्स बनाते थे, गॉड्स की स्कल्पचर बनाई जाती थी, राइट. टूल्स, किस टाइप के वेपन्स को यूज़ किया जाता था? टूल्स में वी कैन इंक्लूड आर कॉइन्स. कॉइन से पता चलता है कि हु वॉज द रूलर ऑफ एट विच पीरियड. कॉइन्स की जो स्टेट है, अगर वहाँ के कॉइन है उनके ऊपर उनकी राजा की मोहर लगाई जाती थी, जिससे पता चले कि हु इज़ द रूलर ऑफ द किंगडम. पॉट्स पे कुछ
डिज़ाइंस वगैरह बनाया जाता था. बाय दोज डिज़ाइंस वी कैन कम टू नो अबाउट द ट्रेंड एंड ट्रेडिशंस, अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल. देन कम्स स्टोन्स. स्टोन्स भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि आज हमारे पास ब्रिक्स है जिससे हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन एट दैट टाइम द कंस्ट्रक्शन वॉज डन बाय द स्टोन्स. So in this chapter we learned about the land, how did the subcontinent got the name India, how, what, from where, and what was the lifestyle of the people we came to know. Then we learned about the dates, कि डेट्स को कैसे काउंट किया जाता था. अगर जीसस क्राइस्ट के बॉर्न से पहले है तो उसे क्या कहते हैं. जीसस क्राइस्ट के बॉर्न की बात करें तो उसे क्या कहते हैं. हमारी बुक को एक नाम आर पास्ट हिस्ट्री क्यों नाम दिया गया है, और हम हमारे पास्ट को कौन से सोर्सेस से फाइंड आउट करते हैं. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस चैप्टर thoroughly. Okay, students? Also, you have to write down the question answers that are being shared. Thank you. In the next lecture, we will meet with the second chapter, that is on the trail of earliest people. Thank you and have a nice day.